میں دعوت دوں گا مقرر شعلہ بیان جناب محترم پروفیسر نوید الرحمن صاحب حافظہ اللہ، ان سے گزارش ہے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس اللہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسٹیج پر شعر ربانی حق و صداقت کی نشانی حضرت مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے۔ چند ہی منٹوں کے بعد ان کا جاندار اور شاندار خطاب ہونے والا ہے، اور الحمدللہ محترم جناب حضرت مولانا قاری عبدالرشید راشد صاحب حفظہ اللہ تعالی اور میری دائیں طرف فضیلت الشیخ حضرت مولانا رضا اللہ طالب صاحب اور مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری عبدالرشید پردیسی صاحب موجود ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد جانشین یزدانی شعر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب کا خطاب بھی ہوگا۔ مجھے جو اسٹیج کی طرف سے وقت دیا گیا ہے اسی وقت سے پہلے ہی اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ جو وقت مجھے میسر آیا ہے میں کوشش کروں گا کوئی بھی بات ایسی نہ کی جائے جو میرے لیے آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید ثابت نہ ہو۔ آپ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات یہ ہے کہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، اس کے اندر آج عقیدت کے پھول ہی نچھاور کیے جائیں گے۔ میرے آقا سے پہلے آپ کی شان جیسا کوئی نہیں آیا، اور قیامت تک سارے بولو میرے آقا کی عظمت پانے والا کوئی آ سکتا نہیں آ سکتا۔ اور آپ اس بات کو یاد رکھیے، میرے رب کا کوئی شریک نہیں، اور اسی طرح صفات کے اندر میرے مصطفیٰ کا بھی سارے بولو کوئی شریک نہیں ہے۔ جس طرح میرا اللہ اپنی صفات کے اندر تنہا ہے، اسی طرح حبیب کبریاء علیہ السلام آپ کی صفات کے اندر بھی کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ میرے آقا کی عظمت اور شان کا کیا عالم ہے، میرے آقا کی شان اور عظمت کے جو گل نچھاور کیے جائیں گے، اور میرے آقا کی عظمت اور شان اس لحاظ سے بھی باکمال ہے۔ میرے آقا کے حسن کا تذکرہ کیا جائے، میرے آقا کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اگر میرے آقا کے حلیے کا ذکر کیا جائے، میرے آقا کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ میرے آقا کی چال کو بیان کیا جائے، میرے آقا کی ڈھال کو بیان کیا جائے، میرے آقا کے غزوات کو بیان کیا جائے، میرے آقا کی ازواج کو بیان کیا جائے، میرے آقا کی بنات کو بیان کیا جائے، میرے آقا کی ہجرت کو بیان کیا جائے، آقا کے سفر اور حضر کو بیان کیا جائے، آپ کی حجامت اور آپ کے لباس کو بیان کیا جائے، آپ کی خطابت اور آپ کی امامت کو بیان کیا جائے،
آپ کی इमामत और आपकी रियाजत को बयान किया जाए, इंसान की सारी जिंदगी गुजर सकती है, लेकिन सारे ऊंची बोलो मेरे आका की शान का कोई तज़किरा कर सकता नहीं कर। और आइए मैं जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूँ, मेरे आका की सीरत भी सारी कायनात से आला है और मेरे आका की सूरत भी सारी कायनात से आला है, और मेरे आका की शान को इस बात से बढ़कर क्या बयान किया जाए कि रब्बे कायनात ने मेरे आका की हर अदा को दीन बना दिया है और मेरे आका की हरकतों सकनात को रब्बे कायनात ने कुरान की आयतें बना दिया है। और मेरे आका की अजमत और शान का आलम क्या है कि मेरे आका की सीरत वाला भी कोई नहीं आया, और सारे बोलो मेरे आका की सूरत वाला भी कायनात में कोई नहीं आया। और मेरे आका की शान का आलम क्या था, एक दफा इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका के पास एक फरिश्ता आया, और एक फरिश्ता आसमान पे बैठा हुआ, जमीन और आसमान के दरमियान में एक तराजू कायम किया गया। जमीन वाले फरिश्ते ने आसमान वाले फरिश्ते से पूछा, हुआ क्या ये वही है? उसने कहा नाम हुआ, हाँ ये वही है। मेरे आका ने फरमाया, फिर मुझे एक पलड़े के अंदर बैठाया गया और दूसरे पलड़े के अंदर 10 आदमियों को बैठाया गया। मेरा पलड़ा भारी था। फिर 100 आदमियों को बैठाया गया, मेरा पलड़ा भारी था। फिर 1000 आदमियों को बैठाया गया, मेरा पलड़ा भारी था। फिर 1,00,000 आदमियों को बैठाया गया, मेरे आका का पलड़ा भारी था। जब मेरे आका के मुकाम के वजन को आदमियों के साथ तोला गया, आखिरकार मेरे नबी की अजमत और शान क्या समझ में आई। वो फरिश्ता जो आसमान पे बैठा हुआ वो पुकार के कहने लगा, तुम किस नबी के मुकाम और मनसब की बात कर रहे हो? अगर एक पलड़े के अंदर 7 जमीनों और 7 आसमानों को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े के अंदर कमली वाले को बैठा दिया जाए, सारी कायनात वाला पलड़ा हल्का हो जाएगा और मोहम्मद की शान वाला पलड़ा सारी कायनात से भारी हो जाएगा। और मेरे आका की अजमत का आलम क्या था, रब्बे कायनात ने मेरे आका को जिन सिफात से नवाजा, उन सिफतों वाला आका से पहले कोई पैगंबर भी नहीं आया। और सारे बोलो आका की अजमत वाला क़यामत तक कोई आ सकता? और मेरे आका की अजमत का क्या आलम है। एक रात मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद नबवी के अंदर सुर्ख रंग की चौदर ओढ़ी हुई और चेहरा आसमान की तरफ किया हुआ, आसमान पे चांद अपनी आबोताब से चमक रहा था और मदीने के अंदर मदीने का माह तमाम भी चमक रहा था। हजरत जाबर आए रजी अल्लाह ताला अन्हु, दिल में ख्याल आया, जाबर आए फैसला कर कि आसमान का चांद प्यारा लग रहा है या मदीने का चांद मोहम्मद प्यारा लग रहा है। आए फैसला कर। आखिर जाबर ने जो फैसला दिया, मैं आज शान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस के अंदर बरमला तौर पे कहूंगा, जाबर ने जो फैसला दिया, रब्बे काबा की कसम है, अगर उसको सोने के पानी के साथ लिखा जाए हक अदा नहीं हो सकता। जाबर ने आसमान के चांद को देखा और फिर मदीने के माह तमाम को देखा और जाबर ने फैसला क्या दिया, अल्लाह तेरे हबीब का चेहरा पुरनवार देखकर मुझे इस तरह लग रहा है कि अगर आसमान के चांद को भी हुस्न मिला है तो मोहम्मद के मुखड़े से मिला है। और मेरे आका की अजमत का क्या आलम था कि मेरे आका की सीरत की अगर बात की जाए और जिस तरह आका की सूरत से प्यार करना लाजिम है,
इसी तरह मेरे मुस्तफा की सीरत पर अमल करना भी जरूरी है। मेरे आका के बारे में, आपकी सीरत के बारे में रब ने कुरान में कहा, फरमाया कुल, ऐ मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर चाहते हो अल्लाह की मोहब्बत के अहल बन जाए, फिर उसका तरीका कार क्या है? मैं सोच रहा था अल्लाह, यहां पर तूने कुल के साथ बात का आगाज क्यों किया है? मेरे रब ने एक ही बात समझाई है ताकि कायनात वालों को पता चल जाए मैं जिस नबी का तस्करा करने वाला हूं वो नबी भी सारी कायनात से आला है, और जिस जुबान से मैं हबीब का तस्करा करवाने वाला हूं वो जुबान भी सारी जुबानों से आला है। फरमाया अगर चाहते हो अल्लाह की मोहब्बत के अहल बन जाए, फिर उसका तरीका कार क्या है? फरमाया फत्तबिऊनी, फिर तुम्हें मैं मोहम्मद की पैरवी करनी पड़ेगी। अल्लाह जो तेरे हबीब का पैरोकार बन जाएगा, जो तेरे हबीब का मुत्तबे सुन्नत बन जाएगा, जो तेरे नबी के नक्शे कदम पर चलेगा, अल्लाह तो उसको इनाम क्या अता करेगा? मेरे रब ने फरमाया जो मेरे हबीब का पैरोकार बन जाएगा मैं उसको 2 इनाम अता करूंगा। जरा सारे ऊंची बोलो कितने इनाम अता करूंगा? फिर ऊंची बोलो कितने इनामात? 2 इनामात। पहला इनाम क्या मिलेगा? यह भी मेरे आका की शान है। फरमाया पहला इनाम यह मिलेगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, जो मेरे रसूल का पैरोकार बन जाएगा वो अपने रब से प्यार नहीं करेगा बल्कि सारी कायनात का रब उससे प्यार करेगा। और फिर मेरे रब ने क्या फरमाया, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तू अपने सर पर तहामा पहाड़ों जैसे गुनाहों के अंबार लेके आएगा, लेकिन मेरे आका का पैरोकार बन के आएगा, आका की मोहब्बत सीने में अपना के आएगा। मालिके कायनात ऐलान क्या करेगा, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तू मेरे रसूल का पैरोकार बन जाएगा, मालिके कायनात तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और मेरे आका की एक आखिरी बात पे जरा गौर करना, मेरे आका की शान का आलम क्या है कि मेरे रब ने मेरे आका के नाम को सारी कायनात में रोशन कर दिया है। सारे बोलो मेरे आका के नाम को रब्बे कायनात ने रोशन कर दिया है। और मेरा ये अकीदा है जो रसूल का पैरोकार बन गया है, रब्बे कायनात ने उनके नाम को भी सारी कायनात में रोशन कर दिया है। और मेरे आका की जो फौज तैयार हुई, मेरे आका के मुत्तबे बने, आओ मैं शेरे रब्बानी की मौजूदगी के अंदर, कारी अब्दुल रशीद साहब की मौजूदगी के अंदर अपनी आखिरी बात करना चाहता हूं। जो मेरे आका का पैरोकार बन जाता है रब उसके नाम को रोशन कर देता है। आओ मेरे आका के पास आया तो अबू बकर था, रब ने उनको सिद्दीक बना दिया। आया तो उमर था, रब ने उनको फारूक बना दिया। आया तो उस्मान था, रब ने ज़ुन्नुरैन बना दिया। आया तो अली था, रब ने हैदर करार बना दिया। आया तो बिलाल था, रब ने मुअज्जिन रसूल बना दिया। आया तो अमीर मुआविया था, रब ने कातिबे वही बना दिया। और मुझे आज इस बात का ऐलान करना है, कायनात के अंदर आया तो हाफिज मोहम्मद याहिया था, रब ने वलिये कामिल बना दिया। आया तो मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी था, रब ने शेखुल कुरान बना दिया। आया तो अब्दुल्ला शेखुपुरी था, रब ने मुनाज़िर इस्लाम बना दिया। आया तो कायनात के अंदर अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी था, रब ने शहीद इस्लाम बना दिया। वो आया तो अल्लामा इसाल इलाही ज़हीर था, रब ने शहादत के रुतबे पर फैज करने के बाद रब्बे कायनात ने जन्नतुल बकी का मेहमान बना दिया था। और इंशाअल्लाह शान मुस्तफा कॉन्फ्रेंस के अंदर आज ये बात आले एलानिया कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह जब तक अहले हदीस और मरकजी जमीयत अहले हदीस के उलमा रहेंगे, यूथ फोर्स के जवान रहेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की तौहीद का नगारा खटकाया जाएगा, पैगंबर की खत्मे नबूवत का फलेरा लहराया जाएगा। और नबी
नबी के सहाबा की अजमत को इंशाअल्लाह बयान किया जाएगा। ऊंची कहो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। जब तक हम जिंदा रहेंगे जरा बेदार हो जाइए, शेर रब्बानी साहब का बयान होने वाला है। जब तक हम जिंदा रहेंगे अल्लाह की तौहीद का प्रचार करते रहेंगे। ऊंची कहो इंशाअल्लाह। और नबी अकरम की खत्म नबूवत का परचम लहराते रहेंगे और सहाबा की अजमत को इंशाअल्लाह बयान करते रहेंगे। और अपनी बात को इकबाल के शेर के साथ खत्म करना चाहता हूं। जन्नत खुद ब खुद तरसेगी तेरे वजूद को इकबाल, जन्नत खुद ब खुद तरसेगी तेरे वजूद को इकबाल। तू चल के तो देख मेरे नबी के नक्शे कदम पर।